Good morning, students. Welcome to Bindu Dadwal chemistry lessons. Let us solve HP Board Class 12 Chemistry Paper 2026. First question is, rate constant depends upon temperature. Electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is argon 18 3d5. What is its atomic number? तो आर्गॉन 18 + 5 23 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट होंगे 26. सो आंसर इज बी. IUPAC name of formic acid is methanoic acid. Which is used to preserve a biological specimen? Answer is formaldehyde. The correct IUPAC name for CH2 double bond CH CH2 NH CH3 is N-methyl prop 1 2 3 prop 2 ene 1 amine. Which of the following is the correct example of solid solution in which the solute is in gas phase? So answer is hydrogen in palladium. Which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell? तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो या तो कैथोड एक्ट करेगा या एनोड. तो या तो कैथोड वाला रिएक्शन कराएगा या एनोड वाला. सो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है नॉट करेक्ट है. इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन नहीं, दोनों में से एक होगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O. Phosgene is COCl2. Which of the following reagents will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride? तो ये सब क्लोरीनेटिंग reagents हैं, सिर्फ ऑप्शन बी NaCl. The alpha hydrogen atom in carbonyl compound is less acidic. ये गलत है, it's more acidic. The anion formed after loss of alpha hydrogen atom is resonance stabilized. This is true. So A is false but R is true. Assertion, reduction of 1 mole of copper ions requires 2 Faraday of charge. Yes, true. क्योंकि 1 मोल कॉपर आयन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए होते, तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए. और 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रू है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Write the reaction involved in aldol condensation. So aldehydes containing alpha hydrogen atom will add to another molecule. ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव. पॉजिटिव पे ये CH2 CH2 ऐड हो गया और नेगेटिव पे H. तो CH3 CH ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा. लेटर ऑन हाइड्रोलिसिस करने पे इसमें से एक जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पर ये OH और ये H वाटर बना के निकल जाते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है. दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन. तो ये सोडा लाइम रिएक्शन है. सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद NaOH and calcium oxide mixture, soda lime mixture on heating. तो इसमें से Na2CO3 निकल जाता है और alkane with 1 carbon atom less यानी मीथेन बनता है. Products are CH4 and Na2CO3. Write the function of enzyme invertase. तो invertase enzyme जो है ये सुक्रोज को a mixture of glucose and fructose में convert करता है. Draw the zwitterine structure. तो अमाइनो एसिड्स में जो है CH3 CH COH NH2 जब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें COH का H NH2 ने ले लिया है और NH3 पॉजिटिव बना लिया है, तब इसको zwitterine कहते हैं. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल विद डायग्राम. तो ड्राई सेल में ये जो है कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है. दिस इज कैथोड.
और एनोड जो है वो जिंक का बना होता है और ये इट इज़ सराउंडेड बाय चारकोल पाउडर एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कंटेनर जिंक एनोड जो है कंटेनर जो है और ये जो है डीपोलराइजर के बीच में जो मॉइस्ट पेस्ट होती है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से फिल्ड होती है। एनोड पे जिंक इलेक्ट्रॉन देके जिंक आयन बनाता है, कैथोड पे अमोनियम आयंस मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लेकर मैंगनस ऑक्साइड Mn2O3 और अमोनिया और हाइड्रोजन बनाते हैं। Give the differences between molecularity and order of reaction. So molecularity is a theoretical concept. Order of reaction is the sum of the powers to which the concentrations are raised in the rate law equation. ये theoretical है, ये experimental concept है। अब molecularity जो है it is the total molecules that simultaneously collide to give the product, जबकि order of reaction is sum of stoichiometric coefficients in the rate law expression. Molecularity जो है हमेशा whole numbers होती है, order fractional भी हो सकता है, zero भी हो सकता है, molecularity कभी भी zero नहीं होती है। Convert toluene to benzaldehyde, तो जब benzaldehyde टॉलुइन को हम क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो ये जो है दो हाइड्रोजन्स में क्रोमाइल क्लोराइड इस तरह से ऐड हो जाता है और हाइड्रोलिसिस पे बेंजाल्डिहाइड बनाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। CH3 ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा। ऑर्थो methyl anisole and paramethyl anisole will be formed. Write a short note on tolerance test. So tolerance test is a test used to distinguish between aldehydes and ketones. Tolerance is reagent is ammonical silver nitrate. On reacting with aldehydes are oxidized to their carboxylate compound, whereas ammonical silver nitrate is reduced to silver and it forms a silver mirror. Aldehydes ये mirror बनाते हैं, ketones नहीं बनाते हैं। Next is discuss the nature of bonding in the following coordination entities on the basis of valence bond theory. It is COF6 3 नेगेटिव। तो अब इसमें x + 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन होती है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +3 स्टेट में कन्फिग्रेशन होगी 3d6। अब फ्लोराइड आयन जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाता है, तो इसलिए जो डी के 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर नहीं हो पाते हैं। तो कंपाउंड बनाने के लिए एक S 3 P और आउटर D ऑर्बिटल्स में से 2 sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं और कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ इक्वेशन। The rate constant of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.025 second inverse and 0.075 second inverse respectively. Calculate the value of activation energy and Arrhenius constant. तो ये रिएक्शन हमने यहाँ थोड़ा क्लियर सॉल्व किया है। इसमें आर्हेनियस इक्वेशन यूज करते हैं। log K2/K1 is equal to EA/2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2। तो K2 है 0.075, K1 है 0.025, EA हमको निकालना है 2.303, R होता है 8.314, T2 minus T1 700 minus 500 हो गया 200 और ये T1 जो है 500 into T2 700।
अब जो है डेसिमल कैंसिल करके 75/25 3 आता है और log 3 होता है 0.4771। तो 0.4771 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 4 इंटू 200 अपॉन 700 इंटू 500। ये सारी टर्म्स नीचे वाली ऊपर चली गई, तो 0.4771 मल्टीप्लाइड बाई ऑल दीज टर्म्स डिवाइडेड बाई 200, हमारा आंसर आ रहा है 15986। अब ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब आर्हेनियस इक्वेशन जो है K इज इक्वल टू AE⁻E/-E को यूज़ करके हम A भी निकाल सकते हैं। तो log K इज इक्वल टू log निकालेंगे तो log K इज इक्वल टू log A माइनस E/2.303 RT आ जाएगा। अब अगर हम टेम्परेचर T1 ले रहे हैं तो K की वैल्यू K1 वाली लेंगे। तो T1 500 है और उस पे K है 0.025, तो log 0.025 होता है -1.602 इज इक्वल टू log A माइनस 15986 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500। सॉल्व करके ये आ रहा है 1.66। इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व करके ये आ रहा है 0.2266। 1.66 में से ये माइनस करते हैं तो ये 0.2266 आ जाता है। log A इतना है तो A इसका एंटी लॉग हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी 1.685। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये क्रोमियम NH3 4 टाइम्स Cl2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 करके x आता है 3। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3। Next question is hexaamine chromium is paramagnetic while tetracyanide nickel is diamagnetic. Explain why. तो इस addition state क्रोमियम का आ रहा है +3 क्यों x प्लस 6 इंटू 0 इजक्वल टू +3। अब क्रोमियम होता है 3d5 4s1। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो रह जाएगा 3d3। तो 5 d ऑर्बिटल्स में से 3 इधर है, 2 अवेलेबल है, ये 2d 1 s और 3 p d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडर को करते हैं और इन 6 d2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 6 अमोनिया लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब निकल में x हमारा आ रहा है x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। अब +2 स्टेट में वैसे 3d8 4s2 है, +2 स्टेट में 3d8 हो जाएगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराता है, 8 इलेक्ट्रॉन को 4 ऑर्बिटल्स में डाल देता है। इस तरह से 1 d 1 s और 2 p dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें 4 साइनाइड लिगेंड्स ये dsp2 ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच डोनेट कर देंगे। यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, तो ये वाला कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो पाइरानोज मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग है और अल्फा मीन्स फर्स्ट कार्बन में OH जो है वो राइट साइड पे है, तो CH2OH ऊपर और OH यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड कार्बन में OH जो है राइट साइड पे, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड पे है, फोर्थ कार्बन में फिर से OH राइट साइड पे है और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर और नीचे H, और ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ glucose alpha D pyranose. This is the structure of alpha D plus glucopyranose. What is glycogen? How is it different from starch? So glycogen जो है जब हम एक्स्ट्रा स्टार्च खा लेते हैं तो बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनिमल बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल स्टार्च है। स्टार्च से ये कैसे डिफरेंट है? एक तो ये एनिमल में स्टोरेज का काम करती है जबकि स्टार्च प्लांट्स में स्टोरेज का काम करती है। ये हाईली ब्रांच्ड होती है और ये लिवर, मसल्स और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जबकि स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और
एनिमल्स में क्विकली ब्रेक डाउन करके एनर्जी देती है. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस. जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयंस प्लस कॉपर. तो ये एनोड है, ये कैथोड है. तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जिंक स्लैश जिंक आयंस, A1 कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस स्लैश कॉपर सॉलिड. यहाँ पे इसकी A2 कंसंट्रेशन. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन गिव्स कॉपर 2 प्लस 2 सिल्वर गिवन दैट E0 सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट. तो हमारे पास फॉर्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc. तो E0 सेल दिया है 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n की वैल्यू है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है log Kc. तो इसको इधर ले गए तो 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059. ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 15.567. तो इसका एंटी लॉग निकाल के Kc आ जाएगा. ये आंसर आ रहा है हमारा, Kc आ रहा है 3.69 इंटू 10⁻15. Among HI, HBr and HCl, HI is most reactive towards alcohols. Why? क्योंकि I एटम बड़ा साइज में है तो ये बॉन्ड भी लंबा होता है, इसको ब्रेक करना इजी होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. What is fermentation? Fermentation is an anaerobic biochemical process in which the enzymes produced by microorganisms will convert carbohydrates into alcohol and carbon dioxide while releasing cellular energy. How is ethanol obtained commercially? तो पहले हम जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उनको इन्वर्टेज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करके और फिर जाइमेज से उस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अल्कोहल में चेंज करके, फिर उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया फीड स्टॉक प्रिपेयर करना, पानी में डाल के मैश करते हैं और फिर एंजाइम से ट्रीट करते हैं और ये प्रोडक्ट आ जाता है. सेकेंड स्टेप जो है फर्मेंटेशन हो गया जिसमें ये प्रोडक्ट आया. थर्ड स्टेप में इसको डिस्टिल करके प्योरीफाई करते हैं और इस तरह से कमर्शियली अल्कोहल ऑब्टेन हो जाती है. हाउ गिव टू यूजेस ऑफ अल्कोहल. तो इट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड अ फ्यूल along with fuel additive. Write the equation of Friedel-Crafts reaction. So किसी भी बेंजीन या बेंजीन वाला कंपाउंड जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनोल वगैरह, उसमें जब हम क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3 नहीं मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करते हैं तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लग जाता है. अगर जो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लग जाएगा. इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं. इसी तरह एसाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है. राइट शॉर्ट नोट ऑन रीमर-टाइमन रिएक्शन. तो फिनोल में क्लोरोफॉर्म और NaOH जब हम ऐड करते हैं तो CHCl2 ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन में अटैच हो जाएगा. NaOH से रिएक्ट करने पर ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया, ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया. NaOH के साथ रिएक्ट करने पर ये दोनों Cl की जगह 2OH लग जाते हैं, उसमें से वाटर निकल जाता है और CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है. HCl से ट्रीट करने पे ये सिलाल्डिहाइड बन जाता है. दिस इज रीमर-टाइमन रिएक्शन. नेक्स्ट इज केस स्टडी क्वेश्चन. डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, nucleophilic substitution reaction can be divided into two categories: nucleophilic unimolecular SN1 and nucleophilic biomolecular SN2 alkyl halides respectively. Reactivity towards SN1 and SN2 reaction depends upon the number of variables including steric hindrance, stability of the intermediate or transition state and solvent polarity. Primary alkyl halide followed by secondary and tertiary alkyl halides are most favorable to SN2 mechanism. In case of SN1 reaction, the order is reversible. Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? Answer is allyl halide. बाकी vinyl है या alkyl halide है. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सेकेंडरी हेलाइड है तो ये
दोनों मैकेनिज्म SN1 और SN2 से हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर सकता है। एक्सप्लेन SN1 एंड SN2। तो SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकैटायन बनाता है और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होती है। तो ये पहले X नेगेटिव निकल जाएगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होके ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। जबकि SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में एक तरफ से लीविंग ग्रुप लीव करने लगता है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। एज अ रिजल्ट ये हाई एनर्जी वाला इंटरमीडिएट बनता है जो फाइनली यहाँ से ब्रेक होके और यहाँ बॉन्ड बना के सब्स्टिट्यूशन अंडरगो कर जाता है। देन सेक्शन E में 3 क्वेश्चंस हैं। राइट द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 4th एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। तो 3D सीरीज की एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो 4th एलिमेंट क्रोमियम है, उसका एटॉमिक नंबर होगा 24। Write a note on lanthanide contraction. So as we move from left to right amongst lanthanoids, the radius decreases. This is called lanthanide contraction. The reason is poor shielding by the d orbitals, and consequences are the sizes are almost similar and it's very difficult to separate them, and the basic character decreases as we move from left to right of their hydroxides. Calculate the magnetic moment of Fe2+. तो Fe atom 26 configuration होती है 3d6 and 4s2. अब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो configuration हो गई 3d6। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है mu is equal to under root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electron. यहाँ 4 है तो 4 into 4 plus 2 8 6 plus into 4 24 का अंडर रूट आता है 4.989 बोहर मैग्नेटॉन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन। तो क्रोमेटाइन इज टेट्राहेड्रल, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और 2 सिंगल बॉन्ड से। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इट्स टेट्राहेड्रल इन नेचर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराटोलुइडीन। तो पैराटोलुइडीन में एनालीन ग्रुप के पैरा पोजीशन में हमारा मिथाइल होता है। दिस इज पैराटोलुइडीन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिटाइलेशन। तो क्लोरोबेंजीन में एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप लग गया। मिक्सचर बनता है 2 का, ऑर्थो और पैरा का। लीन में भी एसिटाइल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। Arrange the following in increasing order of solubility in water and is less soluble than 2-ethylethenamine is less soluble than ethylamine. Arrange the following amines in decreasing order of basic strength. तो यहाँ पे tertiary ethylamine is more basic than secondary, is more basic than primary, is more basic than ammonia, क्योंकि ये गैस फेज में है। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर and relative lowering in vapor pressure are properties which depend on the number of solute particles and not on their nature. They are called colligative properties. Calculate the mole fraction of ethylene glycol. तो molar mass होता है 12 into 2 24 plus 6 30 plus 2 into 16 32, 30 plus 32 is 62. तो number of moles of ethylene glycol हो जाएंगे 20 upon 62, ये आ गया 0.322 और वाटर हो जाएगा बाकी का 80%, तो 80 अपॉन वाटर का मोलर मास 18 हो गया 4.444। टोटल मास इन दोनों को प्लस करके आया 4.766 और मोल फ्रैक्शन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स 0.322 अपॉन 4.766 which comes out to be 0.068. Derive Raoult's law for non-volatile solute and define vapor pressure. तो Raoult's law कहता है कि partial pressure of any component in solution is the product of its pure vapor pressure multiplied by its mole fraction. अब non-volatile solute वैसे
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है वेपर सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। लेकिन अगर सोल्यूशन में एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, और इस केस में फिर सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ जो है सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर की वजह से आएगा, विच इज़ पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी सोल्यूशन इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए 1 माइनस एक्स बी भी होता है, तो पी सोल्यूशन इज कॉल्ड पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। तो पी नॉट इसको मल्टीप्लाई कर लिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये आ गया हमारे पास पी सोल्यूशन। अब इसको हम इधर ले गए तो पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए को भी नीचे ले गए तो पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। दिस इज द Raoult's law for non-volatile solutes. It's also relative loading in vapor pressure. What is vapor pressure? Vapor pressure is when the pressure of vapors are in equilibrium with the vapors of the volatile component above the liquid solution. The pressure exerted by those vapors which are in equilibrium with the solvent liquid are called vapor pressure. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.